Good morning, everyone. Welcome to your first class of class 12 physics. And today we will be starting with the unit 1 of your physics syllabus, which is electrostatics. So let's start. Okay, so in the word electrostatics, we can divide this word in two parts, right? I hope you all can see. The first part is your electro, and the second part is statics, right? This electrostatics word is made up of two small words, electro and statics. Now, what do you understand by the word electro? By the word electro, we mean we understand, okay, it is something related to electric charge, right? Something related to electricity. So something related to charge. Electro is something related to charge, and statics is something related to rest, right? So we have electro, which is related to charge, and static, which is something is at rest, right? Something is at rest. It is static. So that is rest. So if we merge these two, then we can say that in electrostatics, we will be discussing about the charges which are at rest, the charges which are not moving, the charges which are at rest. So that means I can write the definition of electrostatics as electrostatics is a branch of physics which deals with the study of charges at rest. Okay, so it deals with the study of charges at rest, and that is my electrostatics chapter. Okay, this is another branch of physics. So now moving on to, we just said charge, right? But what this charge means? Okay, ये charge होता क्या है? So charge is basically a property of any material body जिसकी वजह से वो experience कर सकता है या फिर क्या कर सकता है? Exert कर सकता है electric forces को. Okay, so it is the property of any material body, okay, which enables it to exert as well as experience electrical force. Okay, so it is the property जिसकी वजह से, so charge is the property जिसकी वजह से कोई भी material body क्या कर सकता है? Experience कर सकता है as well as exert कर सकता है कौन सी forces को? Electrical forces. That means electrical forces तभी experience होंगी अगर एक body के पास charge है. अगर बॉडी के पास चार्ज नहीं है तो वो कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं करेगा. ठीक है, एंड चार्जलेस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सो चार्जलेस बॉडी इज कॉल्ड अ न्यूट्रल बॉडी, राइट? बोलते हैं ना, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज नहीं है तो उसे हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोल देते हैं. और ये जो न्यूट्रल बॉडी है, विल इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस? इट विल नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल forces. Okay, it will not experience electrical forces. Now moving on to, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है. अब हम लोग नेक्स्ट एक चीज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि आप जो है
वो किसी भी मटेरियल बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हो, ठीक है। हाउ विल वी चार्ज अ मटेरियल बॉडी? सो द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग अ मटेरियल बॉडी जो हमने 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, दैट इज बाय फ्रिक्शन। ओके, तो बाय फ्रिक्शन आप कैसे चार्ज कर सकते हो किसी बॉडी को? सो आप फ्रिक्शन से ऐसे चार्ज कर सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, वी रब वी रब टू बॉडीज। जब आप दो बॉडीज को रब करते हो तो क्या होगा कि चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है। व्हेन आई एम रबिंग टू बॉडीज, द चार्ज इज ट्रांसफर्ड is transferred from one body to the other. Okay, जब हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं दो बॉडीज को, तो चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और एक बॉडी आपकी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। सो दैट इज योर चार्जिंग ऑफ मटेरियल बॉडीज बाय फ्रिक्शन। ओके, इसका एक एग्जांपल देखिए हम लोग। इसका एक एग्जांपल है, अगर मैं क्या करती हूँ, इफ आई रब ग्लास रॉड, ठीक है, when glass rod is rubbed, okay, glass rod is rubbed with silk, तो क्या होगा, then glass rod acquires positive charge। ओके, तो ग्लास रॉड के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ओके, तो सिल्क एक्वायर कर लेगा नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज एन एग्जांपल of charging by friction. Okay, so now moving on to another method of charging of material bodies, and this method I will be writing two different cases. So one case is charging of material bodies by conduction, okay, and by induction. Now what is the difference between the two cases? Okay, तो मैंने यहाँ पे दो केसेस लिखे हैं और इनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है कि कंडक्शन और इंडक्शन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। सो इन कंडक्शन व्हाट वी डू, वी मेक एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ओके, एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ओके, सो दिस इज योर कंडक्शन, जहां पे एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है दो बॉडीज के बीच में और उसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है। फाइन, सो दैट इज माय कंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, that there is no contact between two bonds. Okay, इसके अंदर आपका दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि होता क्या है एक्चुअल में, हो क्या रहा है कंडक्शन में। तो कंडक्शन में मेरे पास एक मटेरियल बॉडी है, लेट अस से दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, और ये जो न्यूट्रल बॉडी है यहाँ पर मेरे पास, इसको मैं चार्ज करना चाहती हूँ, ठीक है, इसको मैं चार्ज करना चाहती हूँ। और मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी है। आई हैव अ बॉडी विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड आई हैव अ न्यूट्रल बॉडी, और मैं इसको चार्ज करना चाहती हूँ, ठीक है। दैट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग अ मटेरियल बॉडी, राइट। मुझे एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, तो हाउ विल आई चार्ज इट? मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी है यहाँ पर और ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इनको ज्वाइन कर देती हूँ, इनको कनेक्ट कर देती हूँ। लेट अस कनेक्ट देम विद अ वायर, ठीक है। मैंने इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, ये थी मेरी पॉजिटिवली, और ये तो मेरी न्यूट्रल बॉडी थी। तो अब क्या होगा, अब दिस सिस्टम विल ट्राई टू अटेन एन इक्विलिब्रियम, राइट। ये सिस्टम चाहेगा कि इसको एक इक्विलिब्रियम मिल जाए, अटेन एन इक्विलिब्रियम।
एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है दैट पोटेंशियल on both bodies become equal. Okay, the potential on both bodies become equal. That is my definition of an equilibrium. ठीक है, that is my definition of the equilibrium. Electrical equilibrium का मतलब ये है कि दोनों के दोनों bodies के ऊपर क्या है, potential equal हो जाए. अब मुझे पता है कि पोटेंशियल डिपेंड करता है. पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन चार्ज. दैट मीन्स जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा. ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों बॉडीज को देखूं, दिस इज माय बॉडी वन एंड दिस इज द बॉडी टू. अब अगर मैं इन दोनों बॉडीज को देखूं तो बॉडी वन पे ज्यादा चार्ज है या बॉडी टू पे ज्यादा चार्ज है? ऑब्वियसली बात है, किस पे ज्यादा चार्ज है? बॉडी वन पर जो चार्ज है, द चार्ज ऑन बॉडी वन इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन बॉडी टू. Right? The charge on body 1 is greater than charge on body 2. So that means the potential on body 1, हम लोग पोटेंशियल को किससे लिखते हैं? कैपिटल V से लिखते हैं. चार्ज को किससे लिखते हैं? कैपिटल Q से लिखते हैं. राइट? So what is the potential? The potential on body 1 is greater than the potential on the body 2. तो अब अगर मैं चाहती हूँ, इफ आई वॉन्ट कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए. तो वो दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल कैसे होगा? इट विल गेट इक्वल व्हेन द चार्जेस, अगर कुछ चार्जेस यहाँ से कम हो जाएं और यहाँ पे कुछ चार्जेस बढ़ जाएं, राइट? अगर कुछ चार्जेस यहाँ से कम हो जाएं, अगर कुछ चार्जेस यहाँ से कम हो जाएं और यहाँ पे बढ़ जाएं, तो मेरा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. राइट? दिस इज हाउ आई विल अटेन इक्विलिब्रियम. तो व्हाट विल हैपन now? Some charges from this side, from the one side, will start moving towards the second body. So the charges will start moving towards the second body and will start to accumulate on the body too. और ये तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज का चार्ज इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. राइट? ये कब तक होगा? द फ्लो ऑफ चार्जेस विल बी तब तक प्रेवलेंट जब तक आपका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता. ठीक है, सो दैट मीन्स अब मेरा सिस्टम कैसा होगा? आई विल हैव दिस बॉडी, आई विल हैव दिस बॉडी, आई हैव पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, ये मैंने अभी कनेक्ट कर रखा है, एंड आई विल हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस बॉडी. और इस ये जो है इसके ऊपर अब जो पोटेंशियल है V और जो पहली बॉडी के ऊपर पोटेंशियल V है, बोथ आर इक्वल, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल. पोटेंशियल की दोनों वैल्यूज क्या है? बराबर. तो दैट मीन्स अब मैंने क्या कर लिया, जो मेरे पास न्यूट्रल बॉडी थी उससे मैंने क्या कर ली, मैंने अपनी बॉडी को चार्ज कर लिया. आई हैव मेड अ चार्ज बॉडी. तो अब मैंने चार्ज बॉडी बना ली फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी. तो यानी कि बाय कंडक्शन मैंने चार्जिंग ऑफ द मटेरियल बॉडी करना सीख लिया. ओके, सो दैट इज माय चार्जिंग ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय कंडक्शन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है, तो अब हम लोग इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे. ओके, सो आई होप आप सबने ये लिख लिया हो, बिकॉज आई नीड टू क्लियर अ लिटिल स्पेस इंडक्शन समझाने के लिए. ओके, ओके, सो नाउ आई हैव द स्पेस फॉर चार्जिंग बाय इंडक्शन. यस. Okay, so now charging by induction में मैंने लिखा है that we do not have to make contact between the two bodies. Now this is something which worries us, right? अगर मैं contact ही नहीं बनाऊंगी दोनों bodies के बीच में, तो मैं चार्ज का फ्लो ही नहीं करवा पाऊंगी ना. अगर मैं चार्ज का फ्लो ही नहीं करवा पाऊंगी तो मेरी दूसरी बॉडी चार्ज कैसे होगी? राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज
a little troublesome. But okay, we have a method. How do we do that? Now suppose I have a neutral body. Okay, I have a neutral body एंड ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके अंदर एक कोई भी बॉडी किससे बनी होती है? इट हैज एटम्स. एवरी एटम हैज सम पॉजिटिव चार्ज, सम नेगेटिव चार्ज. बट न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक खासियत क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक खासियत होती है, इसके अंदर ऑल द चार्जेस आर बैलेंस्ड. ऑल द चार्जेस आर बैलेंस्ड, राइट? सारे के सारे चार्जेस बैलेंस्ड हैं. तो यानी कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं. सो दैट इज माय न्यूट्रल बॉडी. जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा. ठीक है. अब मुझे ऐसी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, तो हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, थोड़ी तिकड़म लगाई और हमने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं. वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी. मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है. अब ये जो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, इसको मैं इसके पास ले आती हूँ. टच नहीं करती. लेट्स कीप इट क्लोज टू द बॉडी. ये जो न्यूट्रल बॉडी है उसके पास रख देते हैं. तो मैं इसको उठा के इसके पास ले आई. ठीक है. तो मैंने सपोज इसको इतना क्लोज रख दिया. इसको आई हैव केप्ट इट क्लोज. आई हैव नॉट टच्ड इट बट आई हैव केप्ट इट क्लोज. तो मैंने इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास रख दिया. अब क्या होगा? वी ऑल नो. Let me write a note for you all. Like charges, पढ़ के आए ना? Like charges repel each other and unlike charges attract each other. पता था तो बहुत अच्छी बात है. नहीं पता तो अब याद कर लो that like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay? Now, what do you mean by like charges and unlike charges? Like charges and unlike charges का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. अब अगर इतना हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो यहाँ से कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगी? ऑब्वियसली इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, है ना? तो अगर मैं इसको नीचे दोबारा से ड्रॉ करूं कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे ही क्लोज रखूं, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा, ये जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, लेट मी टेक अनदर कलर. हाँ, ये जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इसके नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा बॉडी के इस एंड में आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है ना इसको, तो एंड में आ गया. फ्लो तो कर नहीं सकता, बॉडी से बाहर तो जा नहीं सकता. तो इसके इस एंड पर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ मटेरियल बॉडी पे, ये किसको रिपेल कर रहा है? पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर रहा है. तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो रिपेल हो रहे हैं वो इस कॉर्नर पे आ जाएंगे. ठीक है. इस कॉर्नर पे आ जाएंगे. अब हमने क्या करा? अब हमने इस एज से यहाँ पर इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. ठीक है. इसको हमने क्या कर दिया? ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. अब ग्राउंड की क्या एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है? ग्राउंड की एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो सारे के सारे चार्ज को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. यानी कि ये जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये सारा ग्राउंड में मूव करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू ग्राउंड. इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू ग्राउंड. एंड फाइनली मेरे पास क्या होगा? फाइनली आई विल हैव अ बॉडी जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस कुछ इस तरीके से होंगे और पॉजिटिव चार्जेस होंगे ही नहीं. ठीक है. पॉजिटिव चार्जेस होंगे ही नहीं. और जब मैं इस मटेरियल बॉडी को दूर ले जाऊंगी, ठीक है, इससे दूर ले जाऊंगी, तो व्हाट विल हैपन? यही जो चार्जेस हैं ये सारे के सारे पूरी मटेरियल बॉडी में फैल जाएंगे
और मुझे क्या मिल जाएगी, आई विल गेट अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गई फिर, एक मुझे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी मिल गई। I am getting a charged body which is negatively charged. ठीक है, so that are my three methods of charging material bodies. So the first method that we did was by friction, जिसके अंदर जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करेंगे हम लोग क्या करते हैं, we rub two bodies और उससे क्या होगा, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर। ओके, सेकेंड केस में क्या होता है, बाय कंडक्शन हम लोग कॉन्टैक्ट बनाते हैं बिटवीन टू बॉडीज, वी आर मेकिंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा न्यूट्रल बॉडी के अंदर, और न्यूट्रल बॉडी फाइनली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड केस में क्या करते हैं हम लोग, बाय कंडक्शन हम लोग नो कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं रखते दो बॉडीज के बीच में, बट जो चार्ज बॉडी है उसको पास में रखते हैं न्यूट्रल बॉडी के, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से दोनों चार्जेस जो है, नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्शन फील करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन फील करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग ग्राउंड में ट्रांसफर कर देंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना देंगे। सो दैट आर माय थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ मटेरियल बॉडी। Again, one is by friction, second is by conduction, and third is by induction. So that is all for today, and we will start with different properties of charges and Coulomb's law in the next class. So I hope I see you all tomorrow, and thank you so much.